So are you all back? That's great. We can start the work. Our next topic is HGP, Human Genome Project. Human Genome Project. First of all, what is a human genome? So every species has its genome, the set of chromosomes, haploid set of chromosomes with a fixed number of genes, all together necessary for making that organism, that species member to run its entire life. The entire genetic material in terms of quality, the kind of genes and genetic material available in the species, that is known as that species genome. So let's say that human genome, when we discuss, the 23 chromosomes come into our mind with almost 30,000 plus number of genes which are more than 30,000. They constitute human genome. In terms of base pairs, if you see 3 into 10 raised to 9 base pairs. Base pairs, you understand, na? The sequence of nucleotides complementary on either side, the base pairs. Do you understand? So the DNA which is spreaded over these 23 chromosomes, over which there are nearly 30,000 plus number of genes, which in terms of length, almost 2.2 meter, या फिर बोल सकते हो number of base pair wise 3 into 10 raised to 9 base pairs. This much long, this many chromosomes, जो भी meaning consider करो, this is our genome, human का genome है. The project was about revealing this genome information. First base pair कौन सी, second base pair कौन सी, third base pair से लेके 3 into 10 raised to 9th base pair कौन सी, all that information to be revealed was the HGP. क्रोमोसोम 1 के ऊपर जितनी भी बेस पेयर्स हैं उनकी सीक्वेंस, क्रोमोसोम 2 पे कितनी है उनकी सीक्वेंस, क्रोमोसोम नंबर 3 पे जो भी बेस पेयर्स हैं उनकी सीक्वेंस, हर एक सीक्वेंस को रिवील करना था, रिस्पांसिबिलिटी अंडर दिस प्रोजेक्ट. So it was a very ambitious mega project launched in 1990. Just the enormous nature of this project, how huge was that? To let you know, simple calculation have been put forth that let's say that 3 into 10 raised to 9 base pair information was to be revealed. For each base pair revelation, $3 $3 was the expected expense per base pair information revelation. So this would have led to total expense of 9 billion US dollars. Can you imagine? 1990 में 9 billion US dollars का expected expense था इस प्रोजेक्ट में, because एक बेस पेयर को रिवील करने का एवरेज एक्सपेंस $3 आता था. वैसे कितनी बेस पेयर्स को रिवील करना था? 3 into 10 raised to 9. So 3 into 10 raised to 9 into 3 would be the total expenditure in terms of US dollars. That came to 9 billion US dollars. वो भी 1990 में. I guess you were not even born. Am I right? तो उस टाइम पे अगर आप चीजों को देखोगे, वहां उस टाइम पे जो 1 रुपये में मिलता था, आज वो एटलीस्ट
30-40 रुपीज पे चला गया है वो मटेरियल जो 1 रुपी पे मिलता था 90s में. एटलीस्ट 20 विल बी मिनिमम. छोड़ो 10%, 10 टाइम्स भी राइज हुआ है. अगर 1 रुपी की ऑब्जेक्ट थी वो आज 10 रुपीज में मिलती है, तो उस सेंस में कोई काउंट करे अगर, तो आज की प्रेजेंट सिनारियो में ये 900 बिलियन, आज के कॉन्टेक्स्ट में 900 बिलियन यूएस डॉलर्स ये हो सकता है. आप इमेजिन करें कितना ज्यादा एक्सपेंसिव. इससे पता चलता है कि उसकी क्या इनॉर्मिटी, इनॉर्मस नेचर था इस प्रोजेक्ट का. कोई अगर इसको बुक के साथ कंपेयर करे, तो मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था. कंसेप्ट ऐसा था कि आपके पास लेट्स से 23 बुक्स है. इन बुक्स में टोटल नंबर ऑफ, जस्ट अ मिनट, this many books are there, and each book 3,300 books equivalent to those genes, and each book has got 100 or rather 1,000 pages, and each page has 1,000 letters. Can you imagine the enormous nature? "23 cupboards are like chromosomes, in which you have a 3,300 books which are like genes, और उनके ऊपर ये लेटर्स जैसे वो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस." तो कैसे है कि हर एक बुक का अगर 1,000 पेज और हर पेज पे 1,000 लेटर्स, सो आप इमेजिन करो कि एक बुक में 1,000 और उसमें भी 1,000, दैट मैनी नंबर ऑफ लेटर्स. ऐसी 3,300 बुक्स का इंफॉर्मेशन रिवील करना है. दिस इज अ ह्यूज इंफॉर्मेशन. इनफैक्ट वो लिखते हैं कि if each page of the book contained 1,000 letters and each book contained 1,000 pages, then 3,300 such books would be required to store the information of DNA sequence from a single human cell genome information. इतनी सारी information है. Actually क्या हुआ कि जो enormous amount of जो data available हुआ, that was to be generated, okay, excessive data was generated, okay. So इतना सारा जब डेटा जनरेट होता है तो उसका क्या करना पड़ता है, प्रोसेसिंग करना पड़ता है. प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है, तो उसका स्टोरेज होता है, रिट्राइवल होगा जब चाहिए तब उसको आप रिट्राइव कर सकते हो. So it has to be retrieved, it has to be stored, it has to be analyzed. इस डेटा का एनालिसिस भी हो सकता है. So storage and retrieval and analysis of all this data needs to be there. उसके लिए कंप्यूटेशन करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, और थ्रू one branch was actually developed because of this activity. So much of biological data was to be stored, to be retrieved, and to be analyzed. For that, some special software programs were created for the
biological research in this field, and for that some specialists were required who would be experts in biological knowledge as well as computer knowledge. And that's how one branch actually came into existence, and that was known as bioinformatics. Can you imagine, बायोलॉजी की एक ब्रांच डेवलप हो गई इस स्टडी के थ्रू। पता चला कि इसमें तो बायोलॉजिकल डेटा को स्टोर करना है, रिट्राइव करना है, एनालाइज करना है, और उसके लिए ऑर्डिनरी कंप्यूटर एक्सपर्ट अगर है तो उसको बायोलॉजी का एंगल क्लियर नहीं होगा, और जो अगर एक्सपर्ट ऑफ बायोलॉजी है उसको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर का एंगल क्लियर नहीं होगा। तो ऐसे एक्सपर्ट्स चाहिए जिसमें बायोलॉजी और कंप्यूटर का नॉलेज हो। ऐसे एक्सपर्ट्स को बायो इन्फॉर्मेटिक्स फील्ड एक्सपर्ट्स कहते हैं। सो उन्होंने एक पूरी ब्रांच को इवॉल्व कर दिया जिसको कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। You understand this? Yeah, you get it or not? समझ में आ रहा है आप लोगों को? Or else I'm talking with myself only. Okay. Seems that you have understood. Give me a 1 minute. What were the goals of HGP, Human Genome Project के goals क्या थे? So first of all, the idea was to identify all the genes in the human DNA over those 23 chromosomes. हमारा estimate था initially के approximately 20,000 से 25,000 genes है. Real number was about 30,000 plus. So they were anticipating that possibly 25,000 genes को हमको reveal करना है. The second point was to determine the sequence of the 3 billion chemical base pairs. 3 into 10 raised to 9. The 3 billion base pairs over this 2.2 meter long DNA, which is making 23 chromosomes. That was to be revealed. वो पूरी information को reveal करना था. Then to store this information in the form of a database. एक ऐसा डेटाबेस में जिसमें अगर ऐसे कमांड देते कि लेट्स से दैट ह्यूमन जीनोम क्रोमोसोम नंबर 2 एंटर, तो क्रोमोसोम नंबर 2 पे जो भी मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है नंबर 1 से लेके नंबर लास्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ दैट डीएनए, पूरी उसकी बेस पैर आपकी आईज के सामने प्रोग्राम के थ्रू रन की जाए तो आपको पता चले कि इसका ये डेटा आपने स्टोर करना है उसके लिए. So storage of this information, this database. Acha, improving the tools for data analysis, developing such you can say software programs which will analyze them and prepare the desired results for you as and when required. कि आपको ऐसा एक बार आपने लगाया कि कमांड लगाया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ओपन हुआ, फिर उसमें लगाया कमांड के क्रोमोसोम नंबर 1 इंफॉर्मेशन, फिर उसमें आप एनालाइज करते हो कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो एंटर करोगे तो आपको स्टार्ट हो जाएगा कि सीक्वेंस में नंबर 1 बेस पेयर इज दिस, नंबर 2 से स्टार्ट होता जाएगा. आप बोलोगे कि विच इज यू नो in this sequence total how many are AT sequence, तो बताएगा कि इतने मिलियन ये वाली सीक्वेंस बताएगा. जीसी सीक्वेंस कितनी है तो ये भी बता सकेगा.
तो वो जो एनालिसिस करना है गिवन डेटा का कि उसमें से कितने एडिनिन है या कितने थायमिन है, कितने ग्वानिन है, कितने साइटोसिन, कितनी एटी पैर, कितनी जीसी पैर, इस पोजीशन पे 10,000 नंबर पे कौन सी पैर, ये सब इस डेटा में से ही एनालिसिस होके बाहर निकलने वाली इंफॉर्मेशन है। तो उसके टूल्स मींस नथिंग बट दी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स व्हिच विल मैनेज ऑल दिस स्टफ, ट्रांसफर द रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू द अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज। ये सब करने का बेनिफिट क्या था? ह्यूमन की जो जीन सीक्वेंस है उसको रिवील करना, फिर उसके बेनिफिट्स लेना फार्मास्यूटिकल एंड अदर मेडिकल फील्ड में, उनसे जीन ट्रीटमेंट्स डेवलप करने की। तो इसके लिए इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करना पड़ता है बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। तो इंडस्ट्रीज वर टू बी सप्लाइड विद दिस इंफॉर्मेशन। सो ये डेटा स्टोर करना था, एनालिसिस करना था, जब भी चाहिए तो इस डेटा को ट्रांसफर करना था, जैसे आजकल हम कर रहे हैं ना। मेरे पास कोई पिक है या वीडियो है तो मैं आपको सेंड करता हूँ व्हाट्सएप पे, तो इट्स अ ट्रांसफर ऑफ डेटा। अब मैं 90s की बात कर रहा हूँ, 30 years बैक, जबकि मोबाइल्स भी इतने अवेलेबल नहीं थे, टेलीफोन भी मांड मांड अवेलेबल होते थे, वो डब्बे जैसे होते थे। तो उस टाइम पे डेटा का ट्रांसफर करना वाज अ बिग चैलेंज। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड सो मच टुडे, बट इट वाज नॉट सो प्रीवियसली। आज तो आप 2 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर इधर से वीडियो कॉल करो और कोई यूके, यूएस, कनाडा में बैठा पर्सन है, आपको एज इट इज दिख जाएगा। 30 years back, this information was not, this technology was not available. So today possible है, but that time so much of information, इतना सारा जीबी का डेटाबेस किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर करना was a big challenge. तो वो challenges को भी ओवरकम करना था। And last, to address the ethical, legal and social issues, ELSI. E stands for ethical, L stands for legal, S for social, I stands for issues. ELS issues to be addressed. Because, whenever such a huge mega project is launched, there might be the people in the country, in the international arena, in the society, who will oppose it, citing some ethical issues, some legal issues, some social issues. एथिकल में सोचो, अगर कोई ऐसा कहता है कि भाई रिलीजन डजंट परमिट टू एक्सप्लोर दिस जीनोम ऑफ एनी स्पीसीज, किसी का जीनोम हमें नहीं स्टडी करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम उसको अल्टर करने का स्टार्ट कर देंगे। उसको अल्टर करेंगे तो इससे नई स्पीसीज डेवलप होगी, नए ह्यूमंस डेवलप होंगे, जो एथिकली हमें अलाउड नहीं है। नेचर हैज राइट टू चेंज द थिंग्स। कोई लीगली उसको अपोज करेगा, कोई सोशल इश्यू रेस करेगा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए हमारे कंट्री में ऐसा वर्क। तो अगर इस टाइप के ऑपोजिशंस रेज होते हैं इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, दे मे बी रेज्ड एंड दे मे क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो हाउ टू काउंटर देम? सो दे हैड मेड टीम्स व्हिच विल काउंटर देम लीगली, सोशली एंड एथिकली, उसका काउंटर देने के लिए। सो टीम ऑफ ethically sound people, legally sound people, socially sound people, to look after addressing this kind of objections which are to be raised in the country over there. So that was about the goals of HGP. Five minutes are left. Let me see how much I am able to complete. See, the Human Genome Project took almost 13 years to start providing the ultimate information. Almost. So almost you can say it took 90 से लेके 13 years, almost 2003 में ये complete हुआ पूरा data revelation. This project was very expensive, so one individual or one private company couldn't have afforded it. So it was coordinated by the US Department of Energy,
and the National Institute of Health in US. बाद में धीरे धीरे जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो ये दो मेन पार्टनर्स थे इन फंडिंग and facilitating the Human Genome Project venture. Later on, some other international agencies joined in providing funding and providing technological inputs and human resource. देखो ऐसे प्रोजेक्ट में तीन चीजें चाहिए, पैसे बहुत चाहिए, फिर दूसरा चाहिए टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस, डिफरेंट कंट्रीज के जो इंस्ट्रूमेंट्स जो टेक्निक्स है डेटा रिवील करने में कंपटीशन में, तो ये सब कंप्यूटर्स और ये टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स। और तीसरा जो चाहिए वो था ह्यूमन रिसोर्स, डिफरेंट कंट्रीज के साइंटिस्ट्स चाहिए जो अपना इनपुट दे सके। सो बेस्ट लॉट ऑफ साइंटिस्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वर brought in the picture. So they say that Wellcome Trust of United Kingdom UK, it became a major partner of this project along with US Department of Energy and NIH, National Institute of Health. Also, some contributions started coming from Japan, France, Germany, China, and other countries. And finally, the project got completed in 2003. The knowledge about the effects of DNA variations among individuals can lead to revolutionary new ways to diagnosis. इसका use कहाँ पे होगा इस information का? Diagnosis में होगा, डिजीजेस को आइडेंटिफाई करने में, ट्रीटमेंट में होगा, डिजीजेस को ट्रीट करने में होगा, एंड टू प्रिवेंट सो मेनी डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस, पर्टिकुलरली द जेनेटिक डिसऑर्डर। आप इमेजिन करो कि हमें पता चल जाए कि एग्जैक्टली कौन सी पोजीशन का बेस पेयर में ऑल्टरेशन होके लेट से सिकल सेल एनीमिया होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज। तो अगर हम ये स्टडी कर सकते हैं तो हम इसका ट्रीटमेंट भी डेवलप कर सकते हैं, उसको जीन थेरापी बोलते हैं। तो जीन थेरापी इज पॉसिबल। Let me see the timings. क्या timings है? 3 minutes more. Besides providing the clues of understanding human biology, learning of non-human organisms DNA sequences can also be important. देखो, हेल्थ केयर फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में, एनर्जी प्रोडक्शन में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रेमेडिएशन में, many other organisms genome revelation can be helpful. जैसे एक ह्यूमन एज अ मॉडल का जीनोम वर्क किया तो नॉन ह्यूमन मॉडल्स में किसका वर्कआउट हो रहा था? बैक्टीरिया का जीनोम भी स्टडी हो रहा था, यीस्ट का भी। सेनोरैबिडिटिस एलिगेंस करके एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है। फिर ड्रोसोफिला द फ्रूट फ्लाई, फिर प्लांट्स में राइज एंड एराबिडोप्सिस, इन प्लांट्स का भी जीनोम सीक्वेंसिंग हुआ था पैरेलली। Well, that was the basic information about HGP. How was that gene sequencing done? It would be taken in a next lecture over there. Till then, goodbye.